अस्सलाम वालेकुम, मैं शकील अनवर कमाल। आज एक ऐसी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जिनका दुबई की रियल एस्टेट में काफ़ी रिच एक्सपीरियंस है और उनके बारे में जानते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ हम दुबई की रियल एस्टेट मार्केट के बारे में भी जानेंगे और उनके एक्सपीरियंस को आपके सामने शेयर करने का मकसद ये है कि दुबई हैज़ बीन अ लुक्रेटिव प्लेस फॉर पाकिस्तानीज़ एंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड पीपल गोइंग देयर एंड इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टीज़। तो हमारे साथ मौजूद हैं समीन तलहा। अस्सलाम वालेकुम समीन। वालेकुम अस्सलाम शकील साहब। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? आई एम गुड जी एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आप पहले अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ सा एक इंट्रोडक्शन दें कि आप कौन हैं, कहाँ आपकी अर्ली लाइफ आपने स्टार्ट की, वेयर यू फिनिश्ड योर एजुकेशन एंड हाउ डिड यू मेक रियल एस्टेट एज अ कैरियर। थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। मेरा बहुत सिंपल सा इंट्रोडक्शन है। आई हैव स्टार्टेड माई वर्किंग कैरियर फ्रॉम 2011 ओनली। 2010 में मेरी शादी हुई थी। उससे पहले आई हैव डन माई बैचलर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट एंड आफ्टर दैट आई हैव completed my masters in Dubai only. Great. Yes, during my working lifestyle. 7 years, early 7 years, from 2011 to 2017, I was into the banking, Mashriq Bank and First Gulf Bank. I was doing the mortgage and small enterprises loans toward the sales side, very much into the sales side. उसके बाद I got appreciated from my colleagues who were into the real estate since I was doing the mortgage. They asked me, okay, आप जितनी मेहनत ब्रोक इसमें करती हैं बैंक में, if you will start working as a real estate person, you will not only get the financial benefit, but you will be having a very good lifestyle as well. So I picked their idea and I started my real estate in 2017 only. Since then, I have worked with the reputed companies like Shades Luxury Properties, Patriot Real Estate, Shobha, and now I am currently working with Azizi Developments for the last 2 years. ग्रेट। तो ये अजीज़ी डेवलपमेंट, इनके बारे में समथिंग आई वांट टू नो कि हमारे लोग भी जानना चाहते हैं। इट्स अ गुड नेम ओवर देयर, वी हैव हर्ड अ लॉट अबाउट अजीज़ी डेवलपमेंट्स। ये क्या करते हैं, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं? Well, if I will start talking about Azizi Development, it's a 15 minutes long speech, but I would like to keep on the very short form. Azizi Developments is basically run by the chairman, Mr. Mirwais Azizi. Okay. His origin is from Afghanistan. He is holding the dual nationalities, Cyprus and Germany. He is having 5 big verticals, not only into the real estate development in Dubai, but also उनकी अफगानिस्तान में they are having the Bakhtavar Bank and Azizi Bank. और let's put in this way कि Mr. Mirwais Azizi is the guy who is running the Central Bank of Afghanistan. Okay. Apart of that, in Europe side, Germany में they are having a big group of oil and gas. I see. After that, the Azizi developments, what they have started back in 2012 in Dubai only. उनका जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था was in फुरजान area and अभी they are holding 5 different location. Furjan, which is near to the new Makhdoom airport, the terminal 4. उसके अलावा the Palm Jumeirah, everyone know about the Palm. If once Dubai is there, the Palm Jumeirah is there. Yeah, so उसके अलावा we have in Rivera. And we have in Creek Views, which is just Creek Healthcare City, which is just 5 minutes away from Bur Dubai and Dera. And all 5 very much into the prime location, which is not only away. If I will talk about the MBR city, it is just 5 minutes away from the Burj Khalifa. okay, and these are all residential buildings? These are the all residential towers along with the commercials. Okay. मैं यहाँ पे ये भी ऐड करना चाहूँगी कि Azizi Development is the only developer in Dubai who is selling the commercials across Dubai market. I see. So our investors number of investors are higher comparative to the other one. दुबई मार्केट कैसी है? How is the market these days? क्या चल रहा है बाजार में आजकल? Okay, I love to discuss about Dubai, what is happening now, but I would like to start from the day when I started Dubai. जब से मैंने दुबई देखा है तो I found the Dubai as the most safe place, Okay. the most clean place, the most hygiene, healthcare. In terms of healthcare, they are number 1.
In terms of CID and police, they are very much available 24/7 with all the efforts what they can put. If there is some accident happening, within 2 to 3 minutes, ambulance will be there and they will secure the life of anyone. On top of that, which is the most important part, is Dubai is a tax-free country. Best land for the rental return or the return on investment. अगर कोई investor आता है, let's say other countries like Pakistan, India, Sri Lanka, Europe, UK, these are the places the people are coming. And these days, because of the Russian and Ukraine war, mostly all the Russians have put their maximum amount of financials in Dubai real estate. Really? Yes. तो इसमें तो बड़ी तेजी दिख रही होगी Exactly, मार्केट के अंदर। there is a lot of movement, and I would like to quote one statement which has published yesterday only in Gulf News, that in 12 years, Dubai market have seen the highest mark in Q3. But in these 12 years की जैसे आपने And बात I would की, like to say that is 125.5 billions dirhams. dirhams. Yes. It's a big investment. It is a big amount. Big amount, no doubt. तो दुबई में आपको ये जो साल 2022 गुजर रहा है, जो कि अपने लास्ट क्वार्टर के अंदर है, और हमने पिछले 2 साल जो है वो कोविड में और पेंडेमिक की वजह से भी बहुत लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स हुई, लॉकडाउन्स हुए, दुबई के अंदर भी हमने बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट देखा। इनफैक्ट पूरी दुनिया में ही उसका इम्पैक्ट आया। तो कैसे उस सूरत हाल से अब ओवरकम कर रहा है दुबई? I would like to phrase in such a way, Dubai was the first country, let's say, कि जिसने during pandemic and post pandemic bring their self away or come out of this pandemic situation in term of grocery, in term of healthcare, in term of financials. अगर आप worldwide एक study करें with the developed country as well as with the developing countries, Dubai was the only one which didn't see that kind of financial crunches, जो कि US में, UK में, Europe में, Australia में, even Pakistan, India, Sri Lanka, these all countries have seen. Dubai में इतना financially crunch नहीं आया था. We were on the very much onto the working side. We have adopted the online working in such a way कि हम अपने bedroom से बैठ के we were earning, we were running our lifestyle. Yes, so no one have faced such problem what we have seen over the television with USA and other countries, even UK also, Europe also have seen a lot of death numbers. Yeah, death tolls were high. Exactly. But in Dubai अगर आप उठा के देखेंगे तो death tolls were very much onto the lower side. How is the year 2022 as far as the business is concerned? Real estate market कैसी रही 2022 के अंदर? Okay, I must say कि 2022 में दो चीज़ों ने have played a vital role in term of Dubai real estate market. Number one, Russia-Ukraine war. Because of that war, everyone have seen everyone's actual face. The UK and Europe have shown their very much abnormal behavior and all. They have sanctioned Russia. Exactly. NATO countries का सारा यही था. Exactly. So Dubai was played a very much neutral role, and they try to be very much welcoming and very much secure for all the new investor. We being a real estate, either we are with Azizi or either we are with or my friends with Emaar, everyone have put up their 100% of effort to provide the comfort and provide as much as help the new investor is needing at that time. So at a long story short, दुबई ने 2022 में यूक्रेन और रशिया की वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा पीक पे पहुंचा है. Not only this one, श्रीलंका की वजह से भी we have seen a lot of movements from funding. Yeah, funds की migration हुई है बहुत सारी. Exactly. और उसके अलावा because you know the Dubai is growing like anything after Expo 2020, right? सब लोगों का ये कहना था दुबई बैठ जाएगा, दुबई will down. Exactly. What happened is, you know, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, माजी में भी हमने ऐसी कई मिसालें देखी हैं कि बड़ी एब्रप्ट मूवमेंट हुई है और अचानक ही मार्केट कोलैप्स हो गई वहाँ की और people have suffered so much losses
तो ऐसा क्या लगता है कि आगे भी कहीं ये बबल तो नहीं है? The people were talking like that. It's a अच्छा। bubble. It's a Yeah. bubble. जो पहले के इन्वेस्टर थे who were putting their funds on an average on a daily basis, they put their self on hold for 6 months, 7 months, and they are saying ये bubble है, खत्म हो जाएगा, and the Dubai market will go down. Okay. What happened in 2022 March? वो मार्च खत्म होने के बाद from April we have seen a boom. Okay. And across Dubai market the prices got a strike up to 15% hike. Okay. So you can see and you can say कि दुबई मार्केट में अब बबल जैसा कुछ भी नहीं है. बट कॉस्ट ऑफ Everything- लिविंग तो बहुत बढ़ गई है, It is not. इन्फ्लेशन नंबर बढ़ गए हैं, ऑयल प्राइसेस बढ़ गई हैं, टैक्सेस बढ़ गए हैं, तो एक आदमी कैसे गुजारा करता है जो कि एक मीडियोकर है, एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, दुबई में जॉब करता है या बिजनेस करता है या अपनी फैमिली के साथ रहता है, तो उनके लिए आपके पास कोई बताएंगी वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? आप कैसे सर्वाइव कर रही हैं? आप तो मुझे बहुत खुश नज़र आ रही हैं. हाँ, yeah, thank you. I will answer in such a way कि expenses, taxes, सबसे पहले टैक्सेस दुबई में है ही नहीं. Okay. There is a VAT वैट है, जो कि रिटर्न हो जाता है and it is for the companies who are running the businesses. It is very much justified because the government has to play their role on the long run, right? Apart of that, जो कि UK, यूरोप में लोग रहते हैं, right? They are paying a big chunk of their income every month or every week if they are working on the weekly basis. Let's say 20%. okay. If I am earning 5,000 to 10,000, I am Okay. not giving that 10,000 even a single buck to the government. That 10,000 coming to me. ठीक है? तो उस बेसिस पे मुझे नहीं लगता कि एक्सपेंस बढ़ा है. द रेंटल इनकम्स, अगर इनकम 10,000 है तो रेंटल हमारा विद सीवा दीवा बिल जो है या फीवा बिल के साथ 3,000 जा रहा है. Okay. ग्रोसरीज 2,000 dirham. Total cost is how much? 5,000 dirham. If I am having a baby of let's say 1, उसकी स्कूल फीस है let's say 1,500. It depends on you. Yeah. You also have the choice जहाँ पे आप 700 dirhams में जो के है स्कूल में भी पढ़ा सकते पढ़ा हैं. सकते हैं. It's all your choice. Let's say if you are choosing a average one, it's a 1,500 cost with the transport. Let's say it's 6,500 if I'm not wrong. Still you have a good amount of 3,000. Well, you can save money over there. Exactly. Correct. Every person who is living in Dubai at the end of the day, every month they are saving a good amount of 2,000 average. और एक्सपर्ट्स तो जाते भी इसीलिए कि Exactly. वहाँ से एक्स्ट्रा इनकम जो आती है उससे पाकिस्तान के अंदर या दुनिया में कहीं भी वो रहते हैं Exactly. वहाँ अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर सकते हैं. Exactly. अच्छा समीन, आपने कहा कि दुबई की बड़ी तारीफें आप कर रही हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि दीज डेज दुबई ने काफ़ी पॉलिसीज अपनी टफ कर दी हैं और पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पर वीज़ा पॉलिसीज़ में सख्ती में देख रहा हूँ. लोगों के वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं और वो एक तो शो मनी का भी 5,000 दिरहम का या 3 लाख रुपए का एक सिस्टम खोल दिया है. तो दुबई वॉज अ वेरी इजी टू गो. हम उठते थे और फ्लाइट पकड़ते थे, दुबई चले जाते थे, वापस आ जाते थे 2 दिन में भी काम करके, मीटिंग करके. अब बड़ा मुश्किल होता जा रहा है. अच्छा, इसकी वजह मैं कहूँगी कि हम खुद ही हैं. पाकिस्तानी. हम पाकिस्तानी खुद ही हैं. अच्छा. ये जो पॉलिसी आप वीज़ा की कह रहे हैं, आई गॉट योर पॉइंट कि शो मनी बैंक, ईदर यू शो इन द बैंक स्टेटमेंट. ये आया कब है? यू टेल मी, कितने दिन पहले आया है? जी बिल्कुल सही है. Few months हाल- only? हाल फिलहाल की बात है. बिल्कुल, फ्यू मंथ्स बिफोर. ये इसलिए आया है कि पिछले 1 सालों में आई हैव सीन पर्सनली रमज़ान से पहले जब मैं अपने अपार्टमेंट से गाड़ी निकाल के बाहर जा रही हूँ तो बैगर्स खड़े हुए हैं एंड यू कैन विजिबली अंडरस्टैंड ईजिली कि वो कमीज शलवार में दे आर वेरी मच पाकिस्तानी. From my home to my office, every day I am seeing 4-5 beggars who are standing here and there with the bottles in their hands and saying, please ये ले लो 1 dirham की, फिर मुझे 10 dirham दे दो. Not only this one, when we are going for a grocery, उसकी बाहर भी उधर खड़े हुए, गाड़ी साफ कर लें, अल्लाह का नाम ले, जो whatever the pattern we have here, वो पूरा वहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है. ठीक है. And it is not about 10 to 50 people. ये पिछले 1 साल में कोई मैं कहूँगी 1000 से ऊपर लोग आए जिन्होंने ये काम किया है. Okay. तो वी आर द वन हु मेक आवर लाइफ स्ट्रेसफुल.
ये दुबई गवर्नमेंट ने नहीं किया, ये हमने खुद किया है। ये जो वीज़ा की पॉलिसी हुई है, ये इंडिया, श्रीलंका, इवन बांग्लादेश के लिए भी दे मेक द वीज़ा टफ बिकॉज ऑफ द सेम हैबिट व्हाट वी आर पीपल आर रिफ्लेक्टिंग। यस एग्जैक्टली। तो आई मस्ट से इसमें दुबई गवर्नमेंट का कुछ नहीं है। इफ़ यू आर पीसफुल, इफ़ यू आर वेरी मच ऑन द डिसिप्लिन साइड, यू आर वेरी मच वेलकम। Do you think Dubai is a heaven for those who live in a peaceful manner? वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पर सिस्टम बहुत अच्छे हैं, गवर्नमेंट सपोर्टिव है, बिजनेस फ्रेंडली है, ये सब कुछ है जिसकी वजह से दुबई फ्लरिश करता चला जा रहा है। आज मैं देखता हूँ कि दुबई के अंदर हर रोज़ एक स्टेट ऑफ द आर्ट नई बिल्डिंग डेवलप हो रही होती है, नए म्यूजियम क्रिएट हो रहे होते हैं, नए मॉल्स बन रहे होते हैं। तो क्या हालात हैं? इट इज़ वेरी सिंपल लॉजिक बिहाइंड। अल्लाह ताला ने सब, हर कंट्री को, हर ज़मीन को किसी न किसी चीज़ के लिए बनाया है। इफ़ यू विल टॉक अबाउट पाकिस्तान, पाकिस्तान इज़ रिच ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हर चीज़ है हमारे पास, नमक से लेके कोयला, और हर चीज़, सोने के पहाड़ भी हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें हमारे पास जी। और हमारे पास हमारी दुबई में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कितनी अच्छी हैं। हम लोग अपने बैकयार्ड में वी कैन ग्रो, माय मदर आल्सो इनटू द गार्डनिंग, एंड इवन टुडे मॉर्निंग उन्होंने अपने नारियल के जो दरख्त से कोई 10-12 नारियल तोड़वाए इन कराची। हाँ कराची में। तो मतलब ये चीज है पाकिस्तान के अंदर। दुबई के अंदर क्या है? दे हैव ओनली डेजर्ट, दे हैव ओनली वाटर, ठीक है। तो वो कब तो वो कब तक चला सकते हैं? उन्हें भी पता है कि दे नीड टू शो समथिंग वेरी न्यू, समथिंग वेरी यूनिक। सो दैट्स व्हाई दे आर ऑन दैट टारगेट्स, सेट टारगेट्स, एंड दे आर डूइंग व्हाट द अदर कंट्रीज आर नॉट डूइंग। अगर ये चीज़ और मैं ये कहूँगी कि अगर ये चीज़ में से अगर हमने 10% भी अडॉप्ट कर लिया व्हाट द दुबई गवर्नमेंट इज डूइंग फॉर दैट लैंड, हम लोग बहुत आगे निकल सकते हैं। बट वी आर नॉट सिंसियर विद आवरसेल्व्स। अनफॉर्चुनेट। बहरहाल समीन, बैक टू रियल एस्टेट बिजनेस। आपके दुबई के अंदर जिस तरह से मार्केट ग्रो कर रही है, और आपने कहा अभी कि 2022 के अंदर बहुत तेज़ी देखने में आ रही है, मार्केट में बड़ा पीक आया हुआ है और लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ड्यू टू द रीजंस यू हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। आप ये बताइए कि ये इतने प्रोजेक्ट हैं, ऑक्यूपेंसी है या सप्लाई साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्लट तो नहीं आ जाएगा, बहुत ज़्यादा सप्लाई हो जाएगी, तो कौन रहेगा वहाँ पर? ऐसे लोग कहते थे 2.5-3 साल पहले लोगों ने बहुत कहा है, पैंडेमिक से पहले लोगों ने बहुत कहा है कि सप्लाई ज़्यादा हो गई है, लोग कम हैं। बट दुबई गवर्नमेंट जब भी करती है तो दे आर हैविंग अ वेरी सेट रूल्स। पहला रूल था उनका कि उन्होंने हमेशा प्लान बनाना है। उन्होंने 2 प्लान्स बनाए। पहला प्लान था उनका 2020 से लेके 2000 से लेके 2020 तक। Yes, 20 years plan. Exactly. And the second now is 2020 से 2040 तक। Okay. जब उनका 2020 तक था प्लान, तो they were very much on the clear side कि उनकी कंट्री में कितने लोग आएंगे। Okay. Every day जो ट्रांजिट होता है ना, it is more than every day. Really? 3 से 4 लाख लोगों का होता है ट्रांजिट। और जो आ रहे हैं दुबई के अंदर एवरी डे, इट इज़ मोर देन, मतलब 5 लाख से ऊपर लोग दुनिया भर से आते हैं दुबई देखने, ठीक है। तो कैसे सप्लाई जो है वो बढ़ सकता है? सही है। और दूसरी बात ये कि अगर ऐसा होता है, देयर इज़ अ वेरी मच रेगुलेटरी बॉडी कॉल्ड लैंड डिपार्टमेंट, दुबई लैंड डिपार्टमेंट। दे आर ऑन द वेरी मच रेगुलेटरी साइड। वो देखते हैं कौन से एरिया में कितनी डेवलपमेंट होनी है, कौन सी लोकेशन पे। अब तो विलास और टाउन हाउसेस की बहुत डिमांड हो गई है। एग्जैक्टली। हम तो वर्टिकल स्ट्रक्चर पे जा रहे थे, अपार्टमेंट्स। नाउ द वर्टिकल, यस, नाउ दुबई इज मूविंग स्टूडियो अपार्टमेंट्स, स्टूडियो आर देयर, 1 bedroom, 2 duplexes, penthouses, everything is there. Okay. And everything is fully occupied. I would say in number 80% of the occupancy rate are there in each area of Dubai. Wow. You can't say कि वहाँ पे सिर्फ 20% लोग हैं और बाकी जो है वो जंगल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप रेट ऑफ रिटर्न क्या देख रही है? क्या ROI वहाँ जब कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसका ROI क्या है? रेंटल इनकम में है ज़्यादा या कैपिटल गेन ज़्यादा होते हैं? किस तरह से उसको, आप चूँकि फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी है आपका बैंकिंग का, तो आप ज़्यादा बेहतर शायद डिस्क्राइब कर सकेंगी। ओके, दुबई में जो भी इन्वेस्ट करता है, इधर वो खुद रह रहे हैं या फिर वो लेके रेंटल पे दे रहे हैं। ओके। दोनों कंडीशन में जो है दे आर गेटिंग बेनिफिट इन 2 ways. वन इज कैपिटल एप्रिसिएशन होता है उनका, दूसरा उनका रेंटल रिटर्न ज़्यादा मिलता है। ऑन टॉप ऑफ दैट आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर पॉइंट। दुबई का जो दरहम है, इट्स फिक्स विद डॉलर्स।
तो वट एवर द कंडीशन और द क्राइसिस और द अप्स एंड डाउन इज हैपनिंग अक्रॉस द ग्लोब, दुबई मार्केट इज नॉट गेटिंग फ्लक्चुएट, इट इज नॉट अ फ्लक्चुएटिंग मार्केट लाइक पाकिस्तान। आज डॉलर हमारा कितने पे है? 221 रुपए का, 221 का। बट फॉर दुबई 12 साल पहले भी 3.65 पे था, आज मैं 12 साल के बाद बैठी हूँ 3.65 पे। लेकिन पाकिस्तान रुपीस के अंदर मैं 28 रुपए का एक दिरहम था जब मैं जाता था रेगुलर बेसिस पर, आज 64 रुपीस का एक दिरहम है। मुझे याद है जब 2011 में मैं आई थी और मैंने कुछ डॉलर्स एक्सचेंज करवाए थे हैदरी मार्केट की तरफ से, तो उस वक्त कोई 71-72 का था, आज 221 में है। तो दुबई में बाय करने के लिए प्रॉपर्टी आपको दोनों तरीके से फेवरेबल है। अगर आज आप कोई 2 करोड़ लेट्स से कि 1 करोड़ से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पाकिस्तानी रुपीस, ओके, तो 1 करोड़ से करते हैं आप, और वो 1 करोड़ आपके 3 साल के बाद जो है 2 करोड़ आराम से बना हुआ होता है। वेरी नाइस टॉकिंग टू यू समीन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और चूंकि हमारे पास वक्त कलील है लेकिन हमने बहरहाल गुफ्तगू बहुत सारी करनी थी आपसे, तो विल सी यू अगेन इंशाल्लाह होपफुली, और दुबई की मार्केट के बारे में, पाकिस्तान की मार्केट के बारे में हम एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ करते रहेंगे और आपसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सो नाइस ऑफ यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।